اس سیشن کے اندر میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر انسرٹ کے ٹیب میں سے ٹیبل کی کمانڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ٹیبل بیسیکلی ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے کمپنی کے امپلائیز کا ریکارڈ، یا اگر کوئی اسکول ٹیچر ہے وہ اپنے اسکول میں تمام اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ وتھ سبجیکٹ نمبر اگر مینٹین کرنا چاہے تو وہ ٹیبل کے ذریعے ان تمام ریکارڈ کو آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں. اس کام کے لیے سب سے پہلے ہم آفس بٹن پہ کلک کر کے ایک نیو بلینک پیج کریٹ کر رہے ہیں اور انسرٹ کے ٹیب میں جا کر ٹیبل پر کلک کرتے ہیں. ٹیبل پر آنے کے بعد یہاں پر ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنی نمبر آف راز اور کتنے کالمز چاہیے. راز بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ کالم ٹاپ پہ سبجیکٹس ہیڈنگ وغیرہ لکھنے کے لیے یوز ہم کر سکتے ہیں. تو لائک فار ایگزامپل مجھے 6 کالمز اور 6 را کا ایک چھوٹا سا ٹیبل چاہیے جس پر میں اسٹوڈنٹس کے ریکارڈز انسرٹ کر سکوں. تو میں نے یہاں سے ٹیبل میں جا کر 6 را اور 6 کالم کا ایک چھوٹا سا ٹیبل جنریٹ کیا. ٹیبل جنریٹ کرنے کے بعد یہ جو ٹاپ ٹو باٹم لائنز آ رہی ہیں ہمارے پاس یہ کالم کہلاتی ہیں، جبکہ لیفٹ ٹو رائٹ یہ جو لائنز آ رہی ہیں یہ را کہلاتی ہے. ٹیبل کے اندر موومنٹ کرنے کے لیے کی بورڈ پہ 4 ایرو کیز اویلیبل ہیں ہمارے پاس. ان ایرو کی مدد لے کر ہم ان ٹیبل کے درمیان موومنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم ایک اسکول کی چھوٹی سی مارک شیٹ کے حوالے سے ریکارڈ مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی مارک شیٹ کے اوپر ہم لوگ کچھ فارمیٹنگ ٹیکنیکس اور ٹیبل کے باقی جو ٹولز کے آپشنز اویلیبل ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں ٹاپ پر ہیڈنگ ایڈ کر دیتا ہوں، لائک سیریل نمبر، نیم، انگلش، میتھ، سائنس اور ٹوٹل. دین اس کے بعد سیریل نمبر ایڈ کر لیتا ہوں. مجھے 3 اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ ایڈ کرنے ہیں، فار ایگزامپل علی، محمد اور ظاہر. ان کے انگلش کے نمبر، میتھ کے نمبر اور سائنس کے نمبر ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے انٹر کر دیں گے، لائک ڈمی ریکارڈس. ٹوٹل نکالنے کا میتھڈ بہت ہی سمپل ہے جس کو میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. فی الوقت میں آپ کو اس ٹیبل کے حوالے سے اس کی ڈیزائننگ پیٹرنز میں سے کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں. جب آپ ٹیبل کریٹ کر لیتے ہیں اور اس میں انفارمیشن انسرٹ کر لیتے ہیں تو آپ ٹیبل کے اسٹائل کو اپنی مرضی کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. یہاں پر کچھ بنے بنائے سیمپلز اسٹائل موجود ہیں. ان میں سے جو بھی اسٹائل آپ اپنے لیے چوز کریں گے وہ کلرز آپ کے ٹیبل کے اوپر اپلائی ہوں گے. اگر آپ ٹیبل میں کسی بھی را یا کالم پر اپنی مرضی سے کلرز انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پرٹیکولر سیل کو رینج میں لیتے اور شیڈنگ کے اس ایرو پہ کلک کر کے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر یہاں انسرٹ کر سکتے ہیں. جبکہ ٹیبل کی اگر بارڈر کریٹ کرنی ہے تو ٹیبل کو رینج میں لینے کے بعد بارڈرز میں جائیں گے اور یہاں پر سے ہم آل بارڈرز پہ کلک کریں گے تو ٹیبل کی تمام ایریاز یعنی را اور کالم میں بارڈرز ہمارے پاس آ جائیں گے. اگر ان بارڈر کی تھکنیس، لائن تھکنیس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر لائنوں کی ویرائٹیز اویلیبل ہیں اور اس کے نیچے لائنوں کی تھکنیس اویلیبل ہے. فار ایگزامپل میں یہاں سے ایک سمپل بارڈر ہی چاہتا ہوں لیکن اس کی تھکنیس زیادہ چاہتا ہوں تو میں ایک تھک بارڈر سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے ٹیبل پہ لائن ڈرا کر سکتا ہوں. اپنی مرضی کی لائن ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈرا ٹیبل کا آپشن اویلیبل ہے، جسٹ لائک اے پینسل. آپ پینسل کی مدد لے کر اپنی مرضی کی لائنز جو ہے وہ آسانی سے ڈرا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان لائنوں کے کلرز آپ اپنی مرضی سے چینج کریں تو یہاں پر پین کلر میں جائیں گے اور یہاں پر اویلیبل کلر میں سے کلر چوز کر کے اوور رائٹ کریں گے لائنوں کو. آپ دیکھیں جو لائن پہلے بلیک کلر کی تھی اب وہ کسی اور کلر میں آ رہی ہے. اگر آپ ان لائنوں کو رب کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ میں ہمارے پاس اریزر کا ٹول اویلیبل ہے. اریزر کی ٹول کی مدد سے ہم نے لائنز کریٹ کی ہیں ان لائنز کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. لائن ڈیلیٹ کرنے سے انوانٹیڈ ٹیبل بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اریز کرتے وقت خیال رکھیے گا آپ کہ اگر آپ نے کسی بھی ایسے ایریا کو غلطی سے رب کر دیا جو کہ امپورٹنٹ تھا وہ ڈیٹا آپ کا لاس ہو جائے گا. تو اس ڈیٹا کو واپس لانے کے لیے ہم انڈو کی کمانڈ کا استعمال کریں گے جس کی شارٹ کٹ کنٹرول Z ہے. تو ٹیبل کے اندر را اور کالم کریٹ کرنے کا ایک سمپل اور آسان سا میتھڈ ہم نے یہاں پر ڈیزائن کے اندر جا کر ڈسکس کیا. اگر مجھے اب مزید کچھ کام نہیں کرنا تو میں سمپل ایرو کی مدد لے کر اس پہ مزید کچھ کام جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرتا. لے آؤٹ کے اندر جا رہے ہیں ہم. لے آؤٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز
टेबल की ग्रिड लाइंस है। आमतौर पे जब हम टेबल की बॉर्डर को ऑफ कर देते हैं, लाइक डिजाइन में मैं जा रहा हूँ और टेबल बॉर्डर्स को मैं नो बॉर्डर्स कर देता हूँ, तो यहाँ जो लाइन आ रही है वो ग्रिड लाइंस कहलाती है। अगर मैं ये ग्रिड लाइंस नहीं देखना चाहता तो यहाँ से मैं ग्रिड लाइन को ऑफ कर सकता हूँ। टेबल पे ग्रिड लाइंस जो बिल्कुल माइनर सी आ रही थी वो ऑफ कर दी गई है। अगर टेबल पर मजीद रॉ कॉलम इंसर्ट करने हैं अगर हमें, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद के नाम के ऊपर एक ब्लैंक रॉ मेरे पास आ जाए, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट अबव की कमांड का इस्तेमाल करूंगा। आप देखें एक न्यू रॉ मोहम्मद के नाम के ऊपर आ रही है। अगर मैं मोहम्मद के नाम के नीचे एक न्यू रॉ चाहता हूँ तो इंसर्ट बिलो की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अगर मैं एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहता हूँ तो इंसर्ट लेफ्ट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हो गया, के लिए कॉलम आ गया, हम उसमें नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैथ्स के बाद एक सब्जेक्ट ऐड करना है तो हम इंसर्ट राइट करते हैं और एक नया कॉलम लेकर नई हेडिंग ऐड कर सकते हैं। लास्ट रिकॉर्ड पे खड़े रहने के बाद अगर आपको न्यू रॉस चाहिए तो इसका आसान तरीका, आप कीबोर्ड से टैब का बटन दबाइए, आपके पास न्यू रॉज आती रहेगी। क्योंकि इस वक्त टेबल की बॉर्डर्स नहीं है तो इसलिए टेबल को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो मैं काम करता हूँ कि टेबल की डिजाइन में जाकर बॉर्डर्स को, ऑल बॉर्डर्स को ऑन कर देता हूँ ताकि हमें अंदाजा हो सके कि लास्ट सेल पे खड़े रहकर जब मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली मेरे पास न्यू रॉज जो है वो इंसर्ट हो रही है। और अनवांटेड रॉज मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इरेजर की मदद से मिटा सकते हैं। जबकि एक और मेथड हमारे पास अवेलेबल है, लाइक हम लेआउट में ही जाते हैं और यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन को यूज करते हैं। डिलीट के ऑप्शन में आने के बाद हमसे कहता है कि आपने क्या चीज डिलीट करनी है, लाइक सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रॉ डिलीट करनी है या पूरा टेबल डिलीट करना है। तो मुझे यहाँ पर अनवांटेड रॉज जो है वो नहीं चाहिए, तो इन रॉज में रहकर मैं डिलीट के ऑप्शन में जाकर डिलीट रॉज पे क्लिक करूंगा, मेरी अनवांटेड रॉज खत्म हो गई। सिमिलरली अगर मुझे किसी कॉलम की नीड नहीं है, मैं उस कॉलम को रेंज में लूंगा, डिलीट के ऑप्शन पे जाकर डिलीट कॉलम पे क्लिक करूंगा, वो कॉलम मेरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेबल पर न्यू रॉज इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर किसी रॉ या कॉलम की आपको नीड नहीं है तो आप उन्हें आसानी से खत्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेबल के अंदर मजीद मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं और मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज, मैं टेबल की कॉलम्स और रॉज को मैं थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज चाहता हूँ, उसकी आउटलाइन नॉर्मल कर देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ टेबल पे जाकर अपनी मर्जी की लाइंस वगैरह ड्रॉ कर दी और टेबल को मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन के अंदर क्रिएट कर दिया। लाइक मैंने तमाम इसके रॉज और कॉलम्स को नॉर्मल कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर किसी भी कॉलम की साइज को बड़ा या छोटा करना हो तो कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेम के अंदर अगर एक स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद वसीम, तो उसका नाम इस कॉलम के अंदर ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो हम कॉलम की साइज को कैसे एडजस्ट करेंगे ताकि ये नाम सही से उसमें आ जाए। तो हम लोग उन तमाम कॉलम में जहां स्पेसेस की नीड नहीं है उन स्पेसेस को इस नेम को दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीरियल नंबर के कॉलम में ज्यादा स्पेसेस आ रहे हैं जो कि इसकी नीड नहीं है, तो हम इसके स्पेसेस को यूटिलाइज करते हैं नेम में। कैसे? अपने माउस के कर्सर को इस टेबल की बॉर्डर पे रखेंगे, जब बॉर्डर का साइन इस तरह से प्लस में तब्दील हो जाएगा तब माउस से क्लिक करके रखेंगे और सीरियल नंबर के कॉलम को छोटा कर देंगे। तो काफी स्पेस नेम के कॉलम को मिल गया, लेकिन अभी भी ये नाम 2 ही लाइनों में आ रहा है। तो हम बाकी स्पेसेस सब्जेक्ट नंबर में से ले लेते हैं। लाइक साइंस के कॉलम को मैंने छोटा कर दिया, मैं मैथ के कॉलम को छोटा कर देता हूँ और मैं इंग्लिश के कॉलम को भी छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह से काफी स्पेस जो है वो नेम के कॉलम को मिल गया और मेरा टेक्स्ट आसानी से एक ही सेल के अंदर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। तो आप किसी भी कॉलम की जिस तरह से साइज बड़ी करते हैं, सेम तरीके से रॉ की साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं। आप जिस भी रॉ की साइज को बड़ा करना चाहें और कम करना चाहें तो उन स्पेसेस को आप कम भी कर सकते हैं।
ले आउट के अंदर हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल बेसिकली एक सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक मार्कशीट के हवाले से एक लेआउट डिजाइन किया है, तो मैं यहाँ पर जब स्टूडेंट का टोटल निकालूंगा तो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट ने टोटल नंबर 300 में से हासिल किए, तो मुझे इस टोटल के सेल के दो हिस्से करने, तो मैं यहाँ से स्प्लिट सेल की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, इस सेल को कितने हिस्से में डिवाइड कर दूं। हमने कहा आप इस कॉलम को, सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करें, दो कॉलम से डिवाइड करें। नंबर ऑफ रॉ एक ही है, चूंकि हम एक ही सेल पर इस वक्त खड़े हुए। फाइनली हम ओके करते हैं। आप देखें इस सेल के दो हिस्से हो गए। एक जगह पर मैंने लिख दिया 300 और 300 में से स्टूडेंट ने जो भी टोटल लिए होंगे उसका हम बाद में टोटल निकालने का तरीका देखेंगे। तो हम इस तरह से अपने कॉलम्स को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर मल्टीपल सेल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इन सेल की जरूरत नहीं है तो आप इनको मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों कॉलम्स को रेंज में लिया और यहाँ से मर्ज सेल की कमांड पे क्लिक किया तो ये दोनों सेल मिलकर एक हो गए। सिमिलरली नीचे जो दो कॉलम आ रहे हैं इनको भी मैंने मर्ज कर दिया, ये देखें दोनों कॉलम्स एक हो गए। बारी बारी हम इनको इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल एक्चुअली टेबल को ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड नंबर 2 के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तमाम अलग टेबल पे आए, तो इसके लिए हम यहाँ से स्प्लिट टेबल की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें सेल नंबर 2 रिकॉर्ड नंबर 2 के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अलग टेबल में आ रहे हैं, जबकि ऊपर सीरियल नंबर और नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है वो अलग टेबल में आ रहा है। इनको मर्ज करना हो तो कीबोर्ड से हम डिलीट का बटन दबाते हैं, ये टेबल दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि हम ये सारा काम टेबल से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए टेबल में हमारे कर्सर का होना जरूरी है, तो ही हमारे पास डिजाइन और लेआउट के ऑप्शंस काम करते हुए नजर आएंगे। अगर हमारा कर्सर इस टेबल से बाहर निकल जाएगा तो आप देखें यहाँ पर टेबल से रिलेट जो प्रॉपर्टी ऑप्शंस थे वो भी हमें नजर नहीं आ रहे। तो हम दोबारा टेबल के ऑप्शन के अंदर जा रहे हैं और अब हम टेबल की टेक्स्ट अलाइनमेंट के साथ कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे टेक्स्ट की अलाइनमेंट को टॉप पर रखना है, मुझे सेंट्रलाइज करना है, राइट अलाइन करना है, बॉटम सेंटर से मुझे जो है वो मिड में रखना है। अलाइनमेंट क्या होगी, यहाँ पर 9 डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल है। हमारा टेक्स्ट किस तरफ और किस तरह से नजर आएगा हम यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। जबकि टेक्स्ट डायरेक्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शंस को 3 डिफरेंट एंगल्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल भी हम इसी तरह से इसको करेंगे। नॉर्मल करने के बाद भी अब देखें कॉलम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो हम इसकी साइज को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि सेल मार्जिन की मदद लेकर हम किसी भी कॉलम के स्पेसेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास डाटा का एक टूल मौजूद है जिसकी मदद लेते हुए हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ। रिकॉर्ड नंबर 4 फॉर एग्जाम्पल बशीर, इंग्लिश मैथ साइंस के नंबर दे दिए हमने। रिकॉर्ड नंबर 5 सलीम, रिकॉर्ड नंबर 6 अहमद। हमने ये कुछ नए रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए और इन रिकॉर्ड्स को ऐड करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस कि ए से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स पहले आ जाए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी और टिल जेड तक के तमाम रिकॉर्ड सीक्वेंस में। इस वक्त देखें आप रिकॉर्ड सीक्वेंस नहीं है। ए से शुरू होने वाला नाम पहले भी आ रहा है और लास्ट में भी है, जेड से शुरू होने वाला नाम बीच में भी है, एस से शुरू होने वाला नाम सेकंड लास्ट है। तो मैं इनकी सीक्वेंस चाह रहा हूँ। डाटा को सॉर्ट करने के लिए हम नेम के कॉलम पे खड़े रहते हैं, यानी चूंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम चाहिए इसलिए मैं नेम की फील्ड पे खड़ा हूँ, डाटा के कॉलम पे जा रहा हूँ और सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सॉर्ट की कमांड को यूज करते वक्त ये मुझसे सवाल करता है कि आपने सॉर्ट किसे करना है। मैंने कहा आप सॉर्ट करें नेम के कॉलम को। कहता है कि नेम के कॉलम में क्या चीज है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। हमारे हिसाब से नेम के कॉलम में टेक्स्ट है, उसे असेंडिंग करें या डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z, डिसेंडिंग मीन्स Z to A। तो हम चाहते हैं कि तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, यानी A to Z। हमने असेंडिंग लिया,
और फाइनली से ओके किया, आप देखिए तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए, जिसका अंदाजा हमें सीरियल नंबर से हो रहा है। एक बात और गौर से नोटिस कीजिएगा कि जब ये तमाम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है तो वो सिर्फ नेम को सॉर्ट नहीं करता, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाले पूरे रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अली का सीरियल नंबर 1 था और उसके सब्जेक्ट नंबर डिफरेंट थे, अहमद का सीरियल नंबर 6 था और उसके डिफरेंट नंबर्स अलग थे। जब हमने इसे सॉर्ट किया तो अहमद सबसे टॉप पर सिर्फ नाम के हिसाब से नहीं आया, बल्कि वो अपने साथ अपना सीरियल नंबर और उससे कनेक्टेड सब्जेक्ट नंबर, और अगर टोटल होता तो वो भी उसे लेकर अपने साथ आता। तो इसका मतलब यह है कि जब आप सॉर्ट करते हैं तो इस बात का फिक्र ना करें कि सिर्फ नेम जो है वो सॉर्ट होंगे, बल्कि आप ये मेक श्योर कर लें कि उसके साथ जितना भी डाटा है वो भी खुद ब खुद उसके साथ सॉर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट एक ऐसी कमांड है जिसमें आपका टेबल यहां से खत्म हो जाएगा और तमाम टेक्स्ट जो है वो नॉर्मली शक्ल में हमें नजर आएगा। इसके लिए हम टैब के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए ओके करते हैं। आप देखें हमारा टेबल यहाँ पर डिलीट हो गया और हमारा टेक्स्ट हमें एक प्रॉपर सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन आमतौर पे इसकी जरूरत आपको उस वक्त होगी कि जब आपको टेबल की जरूरत नहीं है और आपको टेक्स्ट बेस आपको डाटा चाहिए। अगर आप इसको दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो अंडू करें, यानी कंट्रोल Z और 1 स्टेप बैक करके आप अपने कमांड को दोबारा असल ऑर्डर में ले आइए। लेआउट के अंदर डाटा में चलते हैं और लास्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला। फार्मूला की कमांड की मदद लेते हुए हम बेसिकली टोटल निकाल सकते हैं। मुझे अहमद के तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल आंसर यहाँ चाहिए। मेरा कर्सर जिस पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है, सब्जेक्ट नंबर उसके लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हम डाटा में जा रहे हैं, फार्मूला की कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर हमसे कहता है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट क्यों कहता है? क्योंकि जहां पर मेरा कर्सर है उसकी लेफ्ट की तरफ वैल्यूज है। क्या मुझे लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है? हम कहते हैं जी हाँ, ओके। इसने देखिए लेफ्ट की वैल्यू से हमें टोटल निकाल कर दे दिया। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम टोटल करने की कोशिश करूंगा फार्मूला में जाकर, तो अब की बार मुझे सिंटैक्स देता है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन अबव ब्रैकेट क्लोज। अबव का मतलब है कि क्या आपको ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना है, तो हम इसे कहेंगे कि हमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस नहीं करना, बल्कि लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है। ख्याल रखिएगा कि ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रब नहीं होना चाहिए, और आप ओके करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इस फार्मूले को, यानी जो भी आपने आंसर निकाला उस आंसर को रेंज में लें, इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी करें और दूसरे तमाम सेल पर जाकर उसे पेस्ट कर दें। ऑल्दो कि आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कॉपी पेस्ट वाला, यानी 244 हर एक का सेम आ रहा होगा, कोई परवाह नहीं है। आप तमाम रिकॉर्ड पेस्ट करने के बाद अब पहले स्टूडेंट पर जहां आपने पेस्ट किया था उसके बीच में टेक्स्ट के नंबर्स के बीच में क्लिक करें, देन उस पर राइट क्लिक करें और इसको अपडेट फील्ड करें। देन इसी तरह से बाकी तमाम नंबर्स पर भी राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड करें। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट को नंबर दिया है तो इसका टोटल आंसर आ रहा है 188, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप इसके नंबर्स चेंज करते हैं तो आप देखिए टोटल आंसर तो अपडेट नहीं हुआ। तो टोटल आंसर कब अपडेट होगा? जब आप टोटल की फिगर पर राइट क्लिक करेंगे और उसे अपडेट फील्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर कंप्यूटर अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो इस कमांड को भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब हम फिगर्स यानी नंबर्स को कम और ज्यादा करते हैं तो कंप्यूटर एक्चुअल में ऑटोमेटिकली अपने आंसर को चेंज नहीं करता, बल्कि इसे हमें अपडेट करवाना पड़ता है। टेबल के टैब के अंदर आखिरी ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की मदद लेते हुए बेसिकली आप अपने टेबल की अलाइनमेंट को लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हैं। मैं अपने टेबल की अलाइनमेंट को सेंटर करता हूं और ओके करता हूं तो टेबल मेरा पेज का सेंट्रलाइज हो गया है। देन अगर मैं अपने टेबल को पेज की राइट अलाइन पर ले जाना चाहता हूं तो प्रॉपर्टीज में जाकर मैं टेबल की अलाइनमेंट को राइट कर देता हूं। ये देखें टेबल पेज की राइट अलाइन पर आ रहा है। तो वैसे आमतौर पे अगर आप टेबल को कभी लेफ्ट, सेंटर, राइट करना चाहेंगे तो होम के बटन में ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनकी मदद लेकर आप काम नहीं कर सकते। ये फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट को लेफ्ट, सेंटर, राइट करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि पूरा टेबल आपका लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइन हो तो इसके लिए आपको लेआउट के अंदर आकर प्रॉपर्टीज में जाना होगा और यहां से टेबल की अलाइनमेंट को लेफ्ट, सेंटर या राइट सेट करना होगा।